मलाकी 1 चैप्टर 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। जिहाजकुल एजेस्किन ब अखसी हजेस्किन ब अर्राहसा जैदकिन ब अर्याखुब लगा रहसा Radin ilar ahasi sikhetin rebakatin rahalar bahakasiasu uzoskin ba ashकर खतीन इला अबुकतीन रबाहकासियांदुरा। परमेश्वर के आत्मा हमें वचन सिखाने का अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता सीखने का और सिखाने का अनुग्रह कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें आज्ञा पालन में बढ़ा, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में उन्नति कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Malachi chapter 1. God by Malachi complaints of Israel's ingratitude, irreligiousness and profaneness. First verse say, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. First verse say, I have loved you, said the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Such the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Whereas Edom saith, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down, and they shall call them the border of wickedness, and the people against whom the Lord hath indignation forever. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. A son honoureth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honour? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons, saith the Lord of hosts? Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand, saith the Lord? But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. And I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Chapter 2. The priests are sharply reproved for profaning the covenant given them, and the people for strange marriages, treachery, and impiety. First verse say, and now
O ye priests, this commandment is for you. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart. Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts, and one shall take you away with it, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. But ye are departed out of the way, ye have caused many to stumble at the law, ye have corrupted the covenant of Levi, saith the Lord of hosts. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers? Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved, and hath married the daughter of a strange God. The Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, in so much that he regardeth not the offering any more, or receiveth it with good will at your hand. Yet ye say, wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant? And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, wherein have we wearied him? When ye say, every one that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them, or where is the God of judgment? हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से मलाकी 1 अध्याय 2 अध्याय। मलाकी 1 अध्याय 2 अध्याय हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है।
एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी, और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। याजकों को प्रभु की फटकार। 6 वचन से आगे, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं। यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। वह मैं तो महाराजा हूँ, और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 अध्याय पहले वचन से। अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे। और उसने मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है।
परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, न्याय का दिन निकट है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो, हमने किस बात में से उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो, जो कोई बुरा कहता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें समझ दे, ज्ञान बुद्धि दे, और पिता हमें तेरे वचन के अधीन लेकर आ, हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 5 चैप्टर 12 वर्स से 23 वर्स, एजरा 9 चैप्टर 10 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 वचन से 23 वचन। इज़रा की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में, जब हम अकेले में ईश्वरीय रचना के अनुसार हम बनना चाहते हैं, परमेश्वर के डिवाइन ऑर्डरलीनेस में होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर की बातें परमेश्वर हमारे मन के गहरे के अंदर छुपे हुए बातों को प्रकट करना चाहिए। इसके लिए हमने व्यक्तिगत समय, हमारे अकेले के समय में, पर्सनल टाइम में हमने इस बाइबल रीडिंग को करने का फैसला रखा है। लेकिन आप अपने तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, हमने ध्यान रखना है, परमेश्वर का आत्मा ही हमको सब कुछ में ठीक कर सकता है। इसलिए निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।